کہ ہم میلاد کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، امام ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب الوفا میں فرماتے ہیں جس گھر میں میلاد ہو پورا سال اس میں رب کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں، اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ یہ میلاد کی برکت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کیا، فرمایا میں صدیق اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ اور علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب روض الانف میں لکھا، فرماتے ہیں جو حضور کا میلاد منائے یہ میلاد اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ یہ میلاد منانے کی برکتیں ہیں۔ جو حضور کی آمد پہ خوش ہوتا ہے محبوب بھی اس کی جشن منانے پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمائے کہ یہ قطعاً مت سوچا کریں کہ یار لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ کیا ہوتا ہے، ان باتوں کو قطعاً مت سوچیں یار۔ آج دنیا میں فرمائے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کتنی خوشی کرتے ہیں، ارے بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشی ہو رہی ہے، جس محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ زندگی ملی ہے، ہمیں بیٹا ملا ہے، اس محبوب کی خوشی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو۔ صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے حضور کی اخلاق، حضور کی محبت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق و صداقت کے ساتھ گفتگو کرنے، آپ سب کو توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ حاضر ہوا، جانور ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو میرے مالک ہیں اور میں جوانی سے لے کر اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے ان کی خدمت کی ہے، ہر کام کیا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں، جو بھی فرمائے میرے اوپر سامان لاد کے جہاں لے جاتے میں ان کا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں یا رسول اللہ ان کے گھر آج شادی ہے، شادی ہونے والی ہے اور یہ آپس میں پروگرام بنا رہے ہیں کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا اسے ذبح کر لیتے ہیں، اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ اب آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت لے کر، یا رسول اللہ یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں تو ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور فرمایا کہ ان کی ہر بات مانتا تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہی صلہ ہے، اب یہ مجھے ذبح کرنے والے ہیں۔ اس کی اپنی شکایت تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک کو بلایا، کہا میاں فرمائے کہ یہ اونٹ تمہارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہمارا ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے تم اس کو ذبح کر رہے ہو، یا رسول اللہ ہاں اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں دعوت ہے، شادی ہے، تو اسی کو ذبح کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے بیچتے کیوں نہیں ہو، اسے بیچتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کی توجہ رہے گی تو یہ بات بڑی مزے کی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اسے بیچتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا رسول اللہ اب اس کی کیا قیمت لگے گی، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کی کیا قیمت، اگر یہ تگڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہمیں پیسے ملتے، اب تو یہ بوڑھا ہے، اسے خریدے گا کون، یہ تو کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، دعوت پکائیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا کوئی نہیں لیتا، میں لیتا ہوں اسے، سبحان اللہ، میں لیتا ہوں اسے۔ یا رسول اللہ یہ تو بوڑھا ہے، فرمایا جیسا بھی ہے مجھے دے دو، بتاؤ کتنی قیمت لوگے، کتنی قیمت لوگے؟ ارے جس کی قیمت خود رسول لگائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کل ہمیں انمول کر دیا، فرمایا ہماری تو قیمت ہی کوئی نہیں تھی، اور فرمایا رسول اللہ نے کہا میں خریدتا ہوں اسے، یا رسول اللہ آپ تو ایسے ہی رکھ لے، فرمایا نہیں اس کی قیمت دوں گا، قیمت دوں گا۔ اور فرمایا قیمت کس بات کی لگ رہی ہے کہ اونٹ کو حضور سے محبت تھی، ارے کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا، اپنے جانوروں میں نکل جاتا، جنگلوں میں نکل جاتا، کسی اور کے پاس جاتا، کسی سے پاس نہیں گیا۔ معلوم ہوا فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، فرمایا پیار عشق اسی سے ہوتا ہے تو جاتا بھی اسی کے پاس ہے۔ اب اونٹ تھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میرے کریم نے فرمایا میں خریدتا ہوں اسے،
मैं खरीदता हूँ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अब इसे क्या बेचना, आप रख ले। मेरे करीम ने फरमाया नहीं, इसकी कीमत लो। या रसूलल्लाह पहले तो इसकी कीमत अगर अच्छा होता, तगड़ा होता तो 800 1000 दिरहम होती, अब इसकी कीमत 400 दिरहम। मेरे करीम ने फरमाया ये लो 400, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट खरीद लिया और फरमाया अब बता तू क्या चाहता है। या रसूलल्लाह आपका खुद चाहता हूँ, फरमाया आपके साथ रहना चाहता हूँ। एक जानवर को इतनी मोहब्बत अपने आका से, फरमाया इतना प्यार है। खुद सोचिए जब उम्मती अपने आका से प्यार करेगा, कल फरिश्ते अगर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, रसूलुल्लाह खुद खरीद लेंगे, ये तो मेरा है ना। फरमाया कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, एक वाकया लिखते हैं कि हुजूर की वफादारी, सबसे कायनात में वफादार जात जो है रसूलुल्लाह की जात है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, रसूलुल्लाह की जात माँ बाप से बढ़कर, माँ जितना भी प्यार करती है अपनी औलाद से, इतना प्यार करती है, लेकिन वो है कब्र तक। फरमाए कब्र के अंदर माँ का प्यार नहीं है। फरमाए कब्र के अंदर कभी आपने नहीं सुना कोई माँ गई हो। फरमाए कब्र के अंदर बेटे के साथ सो गई हो, बेटा चला गया है, माँ कब्र में कहे मैं इसके साथ सोती हूँ, ऐसी वफादारी कहीं नहीं मिली। फरमाए हाँ एक जात है जिसकी वफादारी मरने के बाद भी होती है, मरने के बाद भी साथ रहती है, वो रसूलुल्लाह की जात है। अरे तू कब्र में बाद में जाता है, रसूलुल्लाह पहले तशरीफ लाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं कि एक बंदा फौत हो गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि कश्फ के जरिए मालूम तो करूँ ना कब्र के अंदर हालात होते क्या है। जब कब्र वाले को दफना के आते हैं, मैयत के साथ क्या मामलात पेश आते हैं, तो फरमाते हैं मैंने कश्फ के जरिए फरमाए कब्र के हालात देखे। अब मैयत को लिटा के आ गए, फरमाए थोड़ी देर गुजरी, फरिश्ते आ गए, वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तशरीफ फरमाते, फरमाए करीम आका भी तशरीफ ले आए और किरामन कातिब फरमाए कि मुनकर नकीर भी आ गए। वहां पे आके सवाल किया, पहला सवाल करते हैं मन रब्बों का, ए बंदे बता। फरमाए उठा के बिठा दिया, बता अब तेरा रब कौन है। उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरमाए पहला सवाल ठीक हो गया। अब फरमाए दूसरा सवाल बता मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। उसने कहा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब जो अहम तरीन सवाल था, जिस पर निजात का दारो मदार है, जिस पर कब्र जन्नत का बाग बनना है, फरमाए वही सवाल आखिरी है। और पूछा मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, फरमाए ये सामने सोनी सूरत वाला खड़ा है महबूब, फरमाए सोनी सूरत वाला, नशरा के सीने वाला, माज़ाक की आंखों वाला, ये सामने खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहता था। अब वो कहने लगा, इमाम गजाली फरमाते वो कब्र वाला कहने लगा लादरी, मैं तो इनको जानता भी नहीं। अब फरिश्ते उठाया सोटा, अब कहा इसकी अब फरमाए के वक्त आ गया है। अब फरमाए पहले सवाल तो थे, वो तो जवाब हो गया, जिस सवाल पर निजात का दारो मदार है उसका तो इन्हें पता भी नहीं है। फरमाए फरिश्ते आगे बढ़े उसे सजा देने के लिए, मारने के लिए। पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, आपने ऐसे हाथ किया, फरमाए रुक जाओ। अब सुनिए रसूलुल्लाह की अपने उम्मती के साथ वफादारी। ऐ उम्मती आज अपने नबी को पहचान ले, अपने नबी की पहचान आज कर ले, ये कब्र में काम आने वाली है। अब सुन, कब्र में तूने नहीं पहचाना, वहां पे रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जब फरिश्ते आगे बढ़े अजाब देने के लिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया मलाइका रोक जाओ। अर्ज की या रसूलुल्लाह इस सवाल का जवाब नहीं दे सका है, अब हम इसे सजा देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया मलाइका अगर ये नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ना ये मेरा उम्मती है, लिहाजा फरमाया छोड़ दो इसे। रब की तरफ से आदर हुआ, जब मेरे महबूब ने कह दिया है फिर छोड़ दो। ऐसी वफादारी तुम्हें कहाँ मिलेगी। अरे कब्र में कौन साथ देता है, माँ बाप छोड़ जाते हैं, बहन भाई छोड़ जाते हैं, नेक अमाल पल्ले नहीं है। वहाँ अगर एक जात है जो काम आने वाली है, वो मुखड़े वाला महबूब है, फरमाया यासीन के सेहरे वाला महबूब है, वल्लैल की जुल्फों वाला वो महबूब है, फरमाया जो कब्र में भी काम आता है। फरमाया यही बात हमें कुरान ने बताई, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। फरमाया अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में कामयाबी चाहते हो, तो फरमाया मेरे महबूब के दर अक़दस पे झुक जाओ और मैं तुम्हें कामयाबी मिल जाए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन
दुरूद पाक पढ़े हुजूर की ज़ात अक़दस। मक्के का दौर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्के से बाजार से बाहर तशरीफ लाए तो एक बुढ़िया खड़ी थी सामान अपना गठरी बांध के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती नहीं थी, अभी इब्तिदा इस्लाम का दौर था, और कहने लगी बेटा मजदूरी करोगे? हुजूर ने फरमाया हाँ करूंगा। कहा मेरा ये सामान है फलां जगह तक ले जाना है। हुजूर ने फरमाया पहुंचा दूंगा। कहा कितनी मजदूरी लोगे? कहा माँ फरमाया कि कोई मजदूरी नहीं लूंगा, तुझे पहुंचा दूंगा। फरमाया अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी उठाई सर पे, अब पीछे से बूढ़ी माँ थी, तेज तेज चल नहीं सकती थी, हुजूर आहिस्ता चल रहे, उसने पीछे से हुजूर की कमीज को पकड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती फरमाया कि उसने बताया फलां मोहल्ले में फलां मकान तक मैंने जाना है। हुजूर उसके साथ गए और फरमाया घर अकेला था, वहां पे गठरी रखी और कहा माँ तेरा घर आ गया। पूछने लगी बेटा बताओ मजदूरी कितनी है? हुजूर ने फरमाया मजदूरी कोई नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। अच्छा बेटा एक बात तुझे बताऊं, मक्के में एक मोहम्मद नामी शख्स आया है जो नबूवत का दावा करता है, उससे बच के रहना। मक्के वाले कहते हैं ये जादूगर है, जादूगर है, पर मैं उससे बच के रहना, और मैं तो उसी के डर से पर मैं ये सामान उठा के यहाँ तक आ गई हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान से आंसू जारी हुए। कहने लगी बेटा तुम रोते क्यों हो? कहा माँ जिस मोहम्मद से तू डर के आई है वही मोहम्मद मैं हूँ, वही मोहम्मद मैं हूँ। पर मैं बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ गए। कहा मोहम्मद तुम हो, पर मैं जिसके अखलाक इतने अच्छे हो, जिसका किरदार इतना अच्छा हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा नबी हो सकता है, नबी हो सकता है। ये मेरे करीब का अखलाक है। पर मैं जो डर के मारे भागते थे, जब हुजूर को देख लेते कलमा पढ़ के दर अक़दस पे आ जाते। ये करीम आका की मोहब्बत है, इसी मोहब्बत का जिक्र कुरान ने हमें दिया, इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के ताबेदार बन जाओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हुजूर की बारगाह में एक काफिर आया, पर मैं जंग उहद का मौका था, आकर दिल में इरादा ये रख के आया था जाके अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शहीद कर दूंगा। जब चला था तो यही इरादा था। इमाम बुखारी ने लिखा जब आया ना हुजूर ऐसे बैठे हुए थे, पर मैं खजूर का छप्पर सहाबा ने बनाया था, उसके नीचे हुजूर एक रेत के टीले पे बैठे हुए थे। सामने से दूर खड़ा है, आके देखा हुजूर की जुल्फे ऐसे कुंडल लगाए हुए, चेहरा चमक रहा है। हुजूर फरमाए के आंखें झुका के बैठे हैं, अब वहां खड़ा है अपनी सवारी पे सवार है। ऐसे जो देखा ना, पर मैं दिल में तो सोच के आया था, पर मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा, लेकिन अब अपनी जान दे बैठा। कहने लगा ये जो सोनी सूरत वाला बैठा है, ये जो सोनी सोनी जुल्फे लटका के बैठा है, अगर यही मोहम्मद है तो ये झूठा नहीं हो सकता, ये झूठा नहीं हो सकता। और फरमाए दिल ही दिल में ये बातें कर रहा। हुजूर ने सारी कैफियत बताई, पर मैं कि सिर्फ चेहरे को देखा, बद्दुहा का मुखड़ा सामने था, और कहने लगे दिल में ख्याल किया कि अगर ये सोनी सूरत वाला जो सामने बैठा है, अगर यही मोहम्मद है तो फरमाया कि फिर ये झूठा नहीं हो सकता। अब करीब आता है, आके फरमाए हुजूर के हम कलामी करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा कि आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी। ऐ मुसलमानों के नबी बताइए अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने मुख्तार कुल बनाया, कायनात के तमाम खजाने रब ने महबूब के हवाले कर दिए, जन्नत की चाबियां महबूब के हवाले। महबूब ये सब कुछ आपका है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया जो मांगोगे मिलेगा। उसने कहा हुजूर अगर कलमा पढ़ लूं मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया जो मांगोगे मिलेगा। अर्ज की अगर जन्नत मांग लूं मिलेगी? जन्नत मांग लूं मिलेगी? हुजूर ने फरमाया मिलेगी। फरमाया मिलेगी, इख्तियार देखे महबूब का। फरमाया जन्नत मांगो मिलेगी। अभी बैठे तो जमीन पे है, फरमाया हाँ मिलेगी जन्नत। उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी फिर गवाह हो जाइए मैं कलमा पढ़ता हूं। फरमाया उसने अपनी सवारी पे बैठे बैठे कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। फरमाया कलमा पढ़ा, हुजूर का गुलाम बन गया। अब आगे अर्ज करता है या रसूलल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी फरमाएं। मेरे करीम ने फरमाया मांग क्या मांगता है? अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे दिल की तमन्ना है आपके कदमों का बोसा लूं,
आपके कदमों का बोसा लूं। अरे ये सारी बातें कौन करवा रहा था? आया तो था मारने के लिए, शहीद करने के लिए आया था, और अभी बैठा सवारी पे है, नीचे भी नहीं उतरा, वहीं पे कलमा भी पढ़ लिया है। अब आगे की तमन्ना कैसी कर दी? हुजूर दिल की तमन्ना है आपके कदमों पे सर रख के बोसा लूं। मेरे करीब ने फरमाया आ ये ख्वाहिश भी पूरी कर, ये ख्वाहिश भी पूरी कर ले। अभी सवारी से उतर रहा था, रकाब में पाँव था, पाँव फंसा, रकाब में सवारी चल पड़ी। अब वहां पे जहाँ खड़ा था पत्थर रखे थे, फरमाया के नीचे जो गिरा पाँव फंस गया, सर लगा पत्थर पे, वहीं पे शहीद फौत हो गया। अब फरमाया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, फरमाया के इसे उठाओ, उठा लिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जिसने जन्नती देखना हो इसे देख ले, जिसने जन्नती देखना हो इसे देख ले। अच्छा उसने नमाजें कितनी पढ़ी थी? कुछ पढ़ी थी? कुछ भी नहीं पढ़ी थी। कुरान पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। फरमाया के न नवाफिल पढ़े थे, न नमाज पढ़ी थी, न कुरान पढ़ा था, न रोजे रखे थे, और न हज किया था, न ज़कात दी थी, न सदकात और खैरात, कुछ भी नहीं किया। फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं जिसने जन्नती को देखना हो इसे देख ले। उमर पाक ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये तो काफिर था। मेरे करीम ने फरमाया उमर जिसने जन्नती को देखना हो इसे देख ले। फरमाया कि इसने सिर्फ दो काम किए हैं, दो काम किए हैं, नमाज भी नहीं पढ़ी। मालूम हुआ फरमाया रब की बारगाह में बख्शिश के लिए नमाज फर्ज है, बख्शिश के लिए नमाज जरूरी नहीं कि नमाज होगी तो बख्शे जाओगे। कुरान पढ़ना तिलावत रब का अदर है, कुरान पढ़ो, अफजल तरीन इबादत कुरान की तिलावत है, लेकिन ये नहीं कहा बख्शिश के लिए यही कुरान है। हाँ फरमाए दो काम किए थे इस बंदे ने। एक काम रसूलुल्लाह का फरमाए कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। एक काम ये किया, और दूसरा काम चेहरा मुस्तफा का दीदार किया। ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार किया, शर्फे सहाबियत मिला, शर्फे सहाबियत मिला। अब उसके पास जाहिरी अमल कोई नहीं है। अब मैं अर्ज करूं यहाँ पे उलमा ने लिखा अगर यहाँ पे तमाम कायनात के गौस मिल जाए, कुतुब मिल जाए, अबदाल मिल जाए, तमाम कायनात के वली मिल के एक तरफ उस सहाबी के कदम की खाक के बराबर नहीं बन सकते। उसके पास अमल तो नहीं था, सिर्फ रसूलुल्लाह को देखा, मालूम हुआ फरमाए सारी बख्शिश का दारो मदार रसूलुल्लाह के कदमों में, रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसलिए रब ने हमें ये उसूल दिया, फरमाए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाए रब का प्यार, रब का कुर्ब, रब की चाहत तब मिलेगी जब मेरे महबूब से फरमाए मोहब्बत करोगे, मेरे महबूब से प्यार करोगे, मेरे महबूब से इश्क करोगे, मेरे महबूब की ताबेदारी करोगे। फरमाए यही तुम्हारी कामयाबी की जमानत है, कामयाबी की जमानत है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये उसूल दिया है, और जिंदगी गुजारने का यही तरीका है। जिंदगी में सारे काम बंदा करे, नमाजें पढ़ता है, रोजाना 5 टाइम नमाजें नवाफिल पढ़ता है, अवाबीन, चाश, इश्कराक, तहज्जुद, फरमाए सारे नवाफिल पढ़ता है, लेकिन दिल में रसूलुल्लाह का अदब नहीं है। वो इबादत किसे काम की है? रब की बारगाह में उस इबादत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, अपना वक्त जाय कर रहा। हाँ जिस दिल में जिब्रील अमीन ने, जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ, शुक्र अदा करना चाहता हूँ, शुक्राने के नवाफिल पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया पढ़ ले। अब जिब्रील अमीन ने 2 नफिल पढ़े, अल्लाहु अकबर, फरमाया के क़याम में खड़े हैं, 10,000 साल क़याम में खड़े रहे, क़याम में खड़े रहे, और फिर रुकू में गए, 10,000 साल रुकू किया, फिर सजदा किया 10,000 साल तक, फरमाते हैं कि और फिर तशहुद में बैठे 10,000 साल, फरमाए कि 40,000 साल के बाद 2 रकात नफिल पूरे किए, और फरमाते हैं जब नफिल पढ़ चुके अर्ज की इलाहुल आलमीन मैंने तेरा शुक्र अदा किया, तेरा हक अदा किया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तूने हक अदा किया, तूने हक अदा किया, लेकिन है जिब्राइल सुन, फरमाया कि तूने इतना अरसा लगाया, सिर्फ 2 नफिल पढ़े, मेरा हक अदा कर दिया, लेकिन एक मेरा महबूब आएगा,
جس کی امت ہوگی وہ چند منٹ میں خلوص نیت سے میری رضا کی خاطر 2 نفل پڑھیں گے، چند منٹ لگیں گے، فرمایا کہ ان کو تیرے 2 نفل سے ثواب زیادہ عطا کروں گا۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ محبوب کا ہے، محبوب کا صدقہ۔ رب نے اتنا ثواب دے دیا، فرمایا ہاں یہ اتنا ثواب صرف محبوب کا صدقہ ہے۔ باقی امتیں جتنے نیک عمل کرتے تھے سب کو ایک نیکی کے بدلے 1 ملتی تھی، اور فرمایا کہ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے، اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو بخشا ہے۔ فرمایا جو 1 نیکی کرے گا، فرمایا کہ 10 سے لے کر 700 تک، فرمایا اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا مزید بڑھا دے گا۔ فرمایا رب ثواب عطا فرماتا ہے، کس کا صدقہ؟ آمنہ کے لال کا صدقہ، آمنہ کے لال کا صدقہ۔